Okay. So what did we discuss in the previous class? Certain revenue expenditure. Table revenue expenditure we had discussed. Yes. Let's do a quick recap. We discussed receipts. Receipts are of two types, capital receipts and revenue receipts. Capital receipts are those which lead to increase in capital or in liabilities or decrease in non-current assets, right? And revenue receipts, जिनको हम revenue भी कहते हैं, or we call them income also. These are the amounts received in the normal and regular course of business without any effect on liabilities and non-current assets. ठीक है? Similarly, expenditure को भी हम दो categories में divide करते हैं, receipt की तरह ही. Capital expenditure is that which normally provides benefits for more than 1 year and leads to increase in non-current assets. Examples are purchase of non-current assets. ठीक है? Yes, Prashita. Nothing, sir. I think आप में से किसी ने ना दो डिवाइस पे वो कर रखा है ज्वाइन, तो उसकी वजह से आवाज एको हो रही है. एक डिवाइस को म्यूट कर दो. सर मैंने किसी ने किया. आई थिंक किसका है ये? यस, प्राशिता तुम्हारी डिवाइस से शायद एको हो रही है. नहीं सर. हाँ. So capital expenditure is also of two types, capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure which provides benefit for more than 1 year and leads to increase in non-current assets. हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था that apart from purchasing of a fixed or non-current asset, whatever expenditure for extension or major improvement is incurred on that asset, that is also part of capital expenditure. जैसे हमने कोई बिल्डिंग खरीदी और बाद में उसमें एक और रूम कंस्ट्रक्ट करवाया, तो वो भी बिल्डिंग अकाउंट में ही जाएगा, अमाउंट उसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा. Similarly, we had discussed initial expenditure on and after purchase of a non-current asset to bring it to usable form is also capital expenditure. For example, हमने कोई मशीनरी खरीदी, बेशक पुरानी मशीनरी खरीदी, हमारे बिजनेस में तो न्यू है, ठीक है, बेशक वो सेकंड हैंड हो, that is a capital expenditure. But and suppose because of the machine being old, we had to incur some repair expenses on that machine before we could start using it. तो वो expenses भी capital expenditure होगा और वो भी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा. यहां तक क्लियर? Yes, sir. Okay. Second is revenue expenditure. Revenue expenditure को हम simply expense भी कहते हैं. We also call it expense. ठीक है, जैसे revenue receipts को हम और क्या कहते हैं? Revenues और incomes, है ना? ऐसे ही revenue expenditure को simply expense भी कहते हैं. So when we say expense, it means revenue expenditure. What is revenue expenditure? The amount that is spent or the cost that is incurred in the normal and regular course of business in terms of assets consumed or services used during the accounting year. ठीक है? It is written off completely in the current year. इसको पूरा का पूरा हम सेम ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने डिस्कस किया था, उसे हम ग्रेजुअली राइट ऑफ करते हैं. सपोज हमने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, एंड लेट अस से वी एक्सपेक्ट दैट मशीन विल बी यूज्ड फॉर 10 इयर्स. तो 10 इयर्स तक हम उसका 1 लाख हर साल डेप्रिसिएशन कहते हैं उसे, अभी आगे टर्म आएगी, डेप्रिसिएशन दिखा के कि 1 लाख हम एज्यूम करते हैं 10 लाख की मशीन एकदम से यूज नहीं हो जाएगी.
10 इयर्स के पीरियड में अगर वो यूज होनी है तो 10 इयर्स में हम उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं। एवरी ईयर उसमें से 1-1 लाख रुपए का हम खर्चा दिखा देते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से कि इतने अमाउंट की मशीन यूज हो गई। तो फर्स्ट ईयर 1 लाख दिखाया, 9 लाख बैलेंस शीट में एसेट्स में रहेगा। सेकेंड ईयर फिर 1 लाख उसमें से प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस दिखा दिया डेप्रिसिएशन का, रिमेनिंग 8 लाख बैलेंस शीट में रहेगा एसेट्स में, एंड सो ऑन। इस तरह से धीरे धीरे करते करते ग्रेजुअली इट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये जैसा हमने कहा इन नॉर्मल एंड रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, हमने गुड्स परचेज किए, रॉ मटेरियल परचेज किया, दैट इज एन एक्सपेंस। हमने सैलरी दी एम्प्लॉइज को, दैट इज एन एक्सपेंस। वी पेड रेंट, दैट इज एन एक्सपेंस। वी पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दैट इज एन एक्सपेंस। वी पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, दैट इज एन एक्सपेंस। तो ये सारे रूटीन के खर्चे हैं बिजनेस के। इनको पूरा पूरा अमाउंट हम सेम ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस शो करके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब एक्सपेंडिचर में देयर इज अ थर्ड कैटेगरी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन्ड। इंस्टॉलमेंट्स में अगर कोई चीज हो रही है तो उसे कहते हैं डेफर्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमें पता है क्या होता है, इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, if I ask you which type of expenditure is advertising, is it capital expenditure or revenue expenditure? So What will you? please repeat. Advertising expense, is it a capital expenditure or a revenue expenditure? What will you say? Sir, revenue expenditure. Yes, revenue expenditure is an expense, क्योंकि रेगुलरली हम एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करते रहते हैं रूटीन बिजनेस में। बट सपोज the company is launching a new product, and to launch that new product huge advertising expenditure is incurred. बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए कंपनी ने, जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए, बैनर्स लगवाए, और जनरली जो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करते हैं उससे 5-6 टाइम्स ज्यादा खर्चा कर दिया एडवर्टाइजिंग पे, क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है? अब एडवर्टाइजिंग बाय नेचर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, क्योंकि ना उससे कोई नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है, ना उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा टाइम के लिए मिलना है। लेकिन यहां पर इसमें मिक्स्ड फीचर्स आ गए दोनों के। जब इतना हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हो रहा है तो नॉन करंट एसेट तो अभी भी कोई नहीं बढ़ रहा, कोई फिक्स्ड एसेट नहीं बढ़ रहा, लेकिन इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें आने वाले 2-3 साल तक लेटेस्ट से मिलेगा। ठीक है? जब तक वो बैनर्स होर्डिंग्स इंटैक्ट रहेंगे तब तक हमें वो बेनिफिट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सपेंडिचर को सपोज हमने 2020 में इंकर किया, तो 2020 में पूरा का पूरा इसको हम एक्सपेंस दिखा के राइट ऑफ नहीं करेंगे, अदरवाइज 2020 का प्रॉफिट तो बहुत कम चला जाएगा, जबकि इसका बेनिफिट आगे वाले 2 साल में भी मिलना है। तो हम डिसाइड करते हैं कि इसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में लेट अस से 2020, देन 2021, देन 2022 में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है? सो लेट अस से हमने 3 लाख रुपए का खर्चा किया, 1 लाख हमने 2020 में एक्सपेंस दिखा दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और क्लोज कर दिया। रिमेनिंग 2 लाख अब एसेट्स में अपीयर होगा। फिर उसमें से 1 लाख रुपीस हम नेक्स्ट ईयर दिखा देंगे, तो नेक्स्ट ईयर के एंड में 1 लाख रह जाएगा एसेट्स में। फिर थर्ड ईयर में रिमेनिंग 1 लाख भी एक्सपेंस दिखा देंगे, तो पूरी तरह से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है? इसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि बाय नेचर तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन बड़ा एक्सपेंडिचर होने की वजह से हम उसे, और उसका बेनिफिट क्योंकि कुछ सालों तक मिलना है, हम उसे इंस्टॉलमेंट्स में राइट ऑफ कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I am reading out the definition.
Deferred revenue expenditure is generally revenue in nature. Why? Because it has no effect on non-current assets. कोई fixed asset नहीं बढ़ता है इसकी वजह से. But the benefit is derived for more than 1 year. Hence, it is treated like capital expenditure, although it is revenue in nature, and written off gradually through profit and loss account over years of its expected benefit. ठीक है. It is a fictitious asset. हमने assets में अगर आपको याद हो एक कैटेगरी डिस्कस की थी, fictitious asset. Do you remember? Yes, sir. क्या थे fictitious assets? ये पढ़ो. Which cannot be. Sir, उसका एग्जांपल था preliminary. हाँ जी बोलो. सर उसका एग्जांपल था preliminary expenses. Yes, very good. Preliminary expenses एग्जांपल था. अब एक और एग्जांपल उसका हमें मिल गया. Deferred revenue expenditure अगर कोई भी है तो that is also fictitious asset. ठीक है. Which cannot be realized in cash and no further benefit can be derived from them. तो deferred revenue expenditure भी इसी कैटेगरी में आ जाता है. It is a fictitious asset. Clear? Now, at the end Yes. of the year, when we prepare financial statements or final accounts, I told you we prepare two main statements. One is income statement, जिसे हम profit and loss account भी कहते हैं, जिसमें एक तरफ हम दिखाते हैं सारे revenues, दूसरी तरफ दिखाते हैं सारे expenses, और दोनों का difference निकल आता है profit या loss. दूसरी स्टेटमेंट हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें एक साइड हम दिखाते हैं सारे एसेट्स और दूसरी साइड हम दिखाते हैं सारी लायबिलिटीज. ठीक है. और लायबिलिटीज और कैपिटल. तो रेवेन्यूज और ये हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, डिमार्केशन क्यों समझनी जरूरी है? बिकॉज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स, these are shown in income statement, मतलब profit and loss account, while capital receipts and expenditure affect the balance sheet. They are shown in the balance sheet. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So receipts and expenditure are clear. Now we move on to the next one, purchases. What are purchases? बिजनेस गुड्स बॉट. जनरली हम परचेज क्या देते हैं? कोई भी चीज हमने खरीदी है तो परचेज है. कोई नई ड्रेस खरीदी, दैट इज अ परचेज. फर्नीचर खरीदा, दैट इज अ परचेज. मशीनरी खरीदी, दैट इज अ परचेज. यस, लिटरली राइट. बट इन बिजनेस, इन अकाउंटिंग, जब हम कहते हैं परचेजेस तो उसमें सिर्फ बिजनेस गुड्स काउंट करते हैं. ओनली बिजनेस गुड्स परचेज्ड are called purchases. अगर हमने मशीनरी खरीदी है तो वो मशीनरी अकाउंट में जाएगा. अगर फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट में जाएगा. बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा. सपोज स्टेशनरी की हमारी शॉप है तो हमारे बिजनेस गुड्स क्या हो गए? स्टेशनरी. स्टेशनरी आइटम्स हमने खरीदी हैं तो वो परचेजेस में आएगा. ठीक है. अगर किसी का काम ही फर्नीचर का है, उसने फर्नीचर खरीदा है आगे बेचने के लिए, तो वो उसके लिए परचेजेस में आएगा क्योंकि वो उसका बिजनेस गुड हो गया. ठीक है. बाकी कोई भी एसेट खरीदा है, बिजनेस गुड मतलब जिस गुड्स में रेगुलर बेसिस पर हम डील करते हैं, जिन गुड्स की हम मैन्युफैक्चरिंग या सेल परचेज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बिजनेस गुड्स. ठीक है. तो वो बिजनेस गुड्स अगर हमने खरीदे हैं तो परचेजेस. अदरवाइज और कोई भी एसेट खरीदा है तो वो परचेजेस में नहीं आएगा, वो अलग से उस एसेट के नाम से आएगा. इज दिस क्लियर? लेकिन सर अगर हमने कोई फर्नीचर बिजनेस के लिए ही खरीदा है, बिजनेस के मतलब बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, लेकिन बिजनेस के अंदर यूज होने के लिए है, तो फिर परचेजेस होगा या फिर फर्नीचर होगा. ठीक है. सपोज आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आपने स्टेशनरी खरीदी, वो हो गया परचेजेस. आपने चेयर टेबल खरीदी शॉप में लगाने के लिए, चेयर बैठने के लिए, टेबल गुड्स लगाने के लिए. ठीक है. तो वो फर्नीचर अकाउंट में आएगा क्योंकि वो चेयर टेबल आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी है,
उस टेबल चेयर को खरीदने बेचने का या मैन्युफैक्चर करने का आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो वो फर्नीचर अकाउंट में आएगा, वो परचेजेस अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। ओके, सो एंड परचेजेस किस कैटेगरी में आएगा? जो हम टर्म्स यूज डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उनमें से किस में आएगा परचेजेस? एक्सपेंस। यस, इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है। देन परचेजेस का ऑपोजिट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस गुड्स और सर्विसेज सोल्ड। अगेन सेल को जनरली तो हम यूज कर लेते हैं बहुत लिबरली, कुछ भी बेचा तो सेल है, ठीक है, फर्नीचर बेचा तो भी, मशीनरी बेची तो भी, लेकिन अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में सेल्स अकाउंट हम तभी यूज करते हैं जब बिजनेस गुड्स बेचे हैं। बिजनेस गुड्स मतलब वो गुड्स या वो सर्विसेज जिनका हमारा मेन बिजनेस है, जिन्हें बेचने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी शॉप है, तो स्टेशनरी के आइटम्स जब हमने अपनी शॉप से बेची तो वो कहलाएगा सेल्स, ठीक है, क्लियर। और अगर हमने शॉप का कोई फर्नीचर बेच दिया तो वो फर्नीचर अकाउंट से एंट्री होगी, उसकी सेल से नहीं होगी। कोई मशीन हमने बेच दी तो वो मशीनरी अकाउंट से एंट्री होगी, सेल से नहीं होगी। हाँ, अगर बिजनेस ही फर्नीचर बेचने का है तो फर्नीचर की सेल को सेल्स अकाउंट में लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, गुड। इसी तरह से अगर सपोज किसी का होटल का बिजनेस है तो उसकी मेन सेल रेवेन्यू कहां से आएगी? उनका मेन रेवेन्यू क्या होगा होटल के लिए? सर कस्टमर्स। रूम रेंट, isn't it? Say yes or no. यस अगर एक होटल है तो होटल के लिए रूम्स का जो किराया आता है वो उनका मेन रेवेन्यू है, दैट इज देयर सेल्स, ठीक है। परचेज और सेल क्लियर है? यस सर। सो आई एम रिपीटिंग दिस थिंग वंस अगेन। परचेज और सेल अकाउंट हम अकाउंट्स में यूज करते हैं ओनली एंड ओनली फॉर बिजनेस गुड्स। और बिजनेस गुड्स कौन से होते हैं? वो जिनका हमारा मेन बिजनेस है, जिनमें डीलिंग का। परचेज का अच्छा, नेक्स्ट टर्म इज परचेज रिटर्न। अगर हमने कुछ गुड्स खरीदे थे और उसमें से कुछ गुड्स हमने सप्लायर को वापस कर दिए, क्यों वापस कर दिए? हो सकता है वो गुड्स कुछ खराब थे, या हो सकता है अब हमें वो लेट पहुंचे हैं और अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, और देयर में बी एनी अदर रीजन, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड परचेज रिटर्न। इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और रिटर्न आउटवर्ड। यस, रिटर्न आउटवर्ड। क्यों कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड? क्योंकि गुड्स वापस बाहर जा रहे हैं हमारे बिजनेस से, ठीक है। सो इस तरह से याद रख सकते हो आप, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, परचेज किए हुए गुड्स वापस बाहर जा रहे हैं, सो इट इज रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। बिजनेस गुड्स बॉट रिटर्न टू सप्लायर्स। सिमिलरली इसका ऑपोजिट हुआ सेल्स रिटर्न। क्या हुआ सेल्स रिटर्न? बिजनेस गुड्स सोल्ड रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। हमने जो गुड्स बेचे थे और किसी वजह से कस्टमर ने अगर हमें वो गुड्स वापस कर दिए, चाहे सारे चाहे उनमें से थोड़े से, तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। यस। और इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। क्यों? क्योंकि ये गुड्स वापस बिजनेस में अंदर आ रहे हैं, बिक गए थे लेकिन अब वापस अंदर आ गए, सो रिटर्न इनवर्ड। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट। अब मैं कई बार ये टर्म यूज कर रहा हूं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अकाउंट होता क्या है? अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। हम
हर चीज का एक अलग अकाउंट बनाते हैं। सैलरी का एक अलग अकाउंट, रेंट का अलग अकाउंट, सेल्स का अलग अकाउंट, कैश का अलग अकाउंट, बैंक का अलग अकाउंट। मतलब जितनी भी तरह की कॉमन टाइप की कुछ सिमिलर ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, उन सब का अलग अलग अकाउंट एक बना देते हैं। तो जितनी बार भी सैलरी पे होगी, सैलरी अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। जितनी बार रेंट पे होगा, रेंट अकाउंट के थ्रू एंटर करेंगे। ठीक है, जितनी बार कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा। सो an account is a systematic record of business transactions relating to a particular person or thing, right? Is it clear? Yes, sir. Good. Next term is depreciation. अभी कुछ देर पहले मैंने ये टर्म यूज की थी जब मैंने कहा था कि मशीनरी सपोज हमने खरीदी है 10 लाख की, तो 1-1 लाख डेप्रिसिएशन दिखाते रहेंगे। इसका मतलब समझते हैं क्या है। सपोज आपने एक कार खरीदी आज, ठीक है, आप उस कार को कुछ दिन के बाद सेल करना चाहते हो, will you be able to sell it at the same price at which you had bought it? No, sir. No. Why not? Sir, because it is used. Because it is used. Yes. क्योंकि वो यूज हो गई, तो यूज होने से धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो गई। दूसरा, टाइम थोड़ा निकल गया, तो टाइम के निकल जाने से भी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये जो वैल्यू कम हो जाती है, जितनी चीज यूज हो गई, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसको हम एग्जैक्टली नहीं नाप सकते कितनी यूज हो गई, इसका हम एस्टिमेट लगाते हैं। सो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे वैल्यू कम होती है। सो ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज होती है। ये नहीं कि अभी डिक्रीज हो गई कल को फिर बढ़ जाएगी, डिक्रीज हो गई तो हो गई वैल्यू। सो ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, कौन से होते हैं फिक्स्ड एसेट्स? जो लॉन्ग टर्म तक यूज होते हैं, मोर देन 1 ईयर। और टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? which can be seen and touched. Remember? So फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो परमानेंटली और ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। ये भी एक एक्सपेंस है। ठीक है, Sir, how is it an हाउ इज इट एन एक्सपेंस? एक्सपेंस क्या होता है? जितना हमने उस साल अपना बिजनेस करने में खर्चा किया, दैट इज एन एक्सपेंस एक पर्टिकुलर ईयर में। तो जितने अमाउंट की मशीनरी हमारी या कोई और फिक्स्ड एसेट यूज हो गया उस साल में, उतना हम मान के चलते हैं वो एक्सपेंस हो गया उस साल का। तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना अमाउंट दिखा के हम उतना अमाउंट लेस कर देते हैं उस एसेट में से। ठीक है, जैसे हमने मशीनरी का एग्जांपल लिया था, 10 लाख की खरीदी, 1 लाख हर साल हम डेप्रिसिएशन शो करते जा रहे हैं, तो वो एक्सपेंस शो करते जा रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. Okay. Next term is stock, which is also called inventory. What is stock? Goods lying unsold at a particular point of time. कौन से goods? जब भी हम गुड्स कहते हैं, बिजनेस गुड्स, मतलब जिन गुड्स में हमारा बिजनेस रेगुलरली डील करता है। तो जो बिजनेस गुड्स अभी बिके नहीं है और रखे हुए हैं, बचे हुए हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। और ये कौन सी प्रीवियस डिस्कस टर्म में आता है? Current asset. यस, इट इज एन एसेट, इट इज अ करंट एसेट। क्यों करंट एसेट? क्यों? क्योंकि कुछ ही टाइम में बिक जाता है। स्टॉक कोई सालों साल तो रखा नहीं रहेगा, कुछ दिन में या कुछ मंथ्स में बिक जाएगा जनरली। सो इट इज अ करंट एसेट। नेक्स्ट टर्म इज डेटर्स। डेटर्स आर द पर्सन्स और एंटिटीज हु ओ OWE। ओ का मतलब होता है हैज टू पे, हु हैव टू पे।
ठीक है, इस वर्ड को बहुत केयरफुली यूज करना है। यहां पर OWE की जगह OWN कर दिया, ओन, तो मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। ओन का मतलब जो चीज हमारी है, जिसके हम ओनर हैं, और OWE, ओ का मतलब जो हमने किसी को देना है, which is not ours, which we have to give to someone, which we have to pay to someone. Is this difference clear? Own and O. Yes, sir. हाँ, तो इसका ध्यान रखना है। कई बार ये एक लेटर गलत लिखने से पूरा मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है और पूरी डेफिनेशन गलत हो जाती है। सो पर्सन्स और एंटिटीज who owe an amount means who have to pay an amount to the firm for goods services sold on credit. जब भी हम कहते हैं टू द फर्म, तो हम किस फर्म की बात कर रहे हैं? जिसके हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, हम उस बिजनेस फर्म की बात करते हैं। ठीक है, जिसके हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उस बिजनेस फर्म की हम बात करते हैं। तो वो सब लोग या वो सब कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने हमारी बिजनेस फर्म को कुछ अमाउंट पे करना है। क्यों पे करना है? फॉर गुड्स सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। अगर हमने किसी को गुड्स या सर्विसेज उधार पे बेचे थे और उन्होंने उसकी पेमेंट अभी करनी है, तो वो हमारे कहलाते हैं डेटर्स। क्या कहलाते हैं? Debtors. अगेन बी इज साइलेंट, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं डेटर्स। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं देनदार, जिन्होंने हमें पैसे देने हैं। दीज आर ऑल्सो करेंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ दिन में या कुछ महीने में पैसे दे देंगे, बहुत लंबे टाइम के लिए तो उधार जनरली नहीं दिया जाता। ठीक है, डेट इज डेटर्स क्लियर? सर अगर लंबे टाइम के लिए दिया है तो फिर वो नॉन करंट एसेट में आ जाएगा ना? टेक्निकली यस, बट प्रैक्टिकली नो। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब हम करंट एसेट और नॉन करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी की डिमार्केशन करते हैं, तो हम करते हैं कि जनरली इस तरह की चीजें कितने टाइम में यूज हो जाती हैं या पे हो जाती हैं। ठीक है, तो जनरली क्योंकि उधार कुछ दिन या कुछ महीने का होता है, तो इसलिए डेटर्स को हम करंट एसेट में ही मानते हैं हमेशा। क्लियर? हाँ, वो एक एक्सेप्शन हो सकती है कि कभी एक साल से ज्यादा लग जाए कलेक्शन करने में किसी डेटर से, बट दैट इज एन एक्सेप्शन। स्टिल वी विल इंक्लूड डेटर्स इन करंट एसेट्स ओनली बिकॉज जनरली the amount is recovered from the debtors within 1 year time. Clear? Yes. Okay. Debtors की opposite term है creditors. Persons or entities and to whom the firm owes an amount for goods. So creditors are those people or those firms to whom the firm owes an amount. मतलब हमारी फर्म ने जिनको पैसे देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि उनसे गुड्स या सर्विसेज हमने उधार पे लिए थे। फॉर गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो हमने उधार पे खरीदा था उसकी पेमेंट करनी है। एंड दीज आर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि कुछ टाइम के अंदर हमें उनकी पेमेंट कर देनी होती है। इज दिस मच क्लियर? Okay. Next term is Yes, sir. Next term is profit. Profit means excess of revenue of a period over related expenses. ठीक है, सपोज 2000, हम अकाउंटिंग में ईयर हमेशा लेते हैं अप्रैल टू मार्च, फाइनेंशियल ईयर। कुछ मेंशन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट आपने मानना है 1 अप्रैल से 31 मार्च का ईयर। ठीक है, तो अभी कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है? 2020-21, which started on 1st April 2020 and which will end on 31st March 2021. Clear? So excess of revenue of a period over related expenses. मैंने आपको बताया हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें एक तरफ हम दिखाते हैं सारे रेवेन्यूज, सेल्स, दूसरी तरफ दिखाते हैं सारे एक्सपेंसेस, परचेजेस, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, और इन दोनों का जो उस साल के रेवेन्यू को अर्न करने में हमारा खर्चा हुआ जितना भी।
और दोनों के डिफरेंस को जब हम निकालते हैं तो वो कहलाता है प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू minus expense when revenue is more than expense. Is this clear? Yes, sir. Good. Profit का opposite क्या होता है? Profit का opposite loss. ठीक है. Loss क्या है? अब loss दो तरह का हो सकता है. One is excess of expenses of a period over related incomes. मतलब अगर हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सेल कम अमाउंट की हुई हो लेकिन खर्चे ज्यादा हो गए, तो जो डिफरेंस निकलेगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो वो डिफरेंस निकलेगा नेगेटिव. दैट विल बी कॉल्ड लॉस. सो लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू. और लॉस एक दूसरी तरह का भी हो सकता है. अमाउंट, ये तो रेगुलर बिजनेस लॉस हो गया कि जो सेल परचेज में हमें लॉस हुआ रेगुलर बिजनेस में. दूसरा कौन सा लॉस हो सकता है? अमाउंट लॉस्ट विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न. अमाउंट लॉस्ट विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय थेफ्ट, अगर कोई चोरी हो गई हमारी फर्म में किसी चीज की, और लॉस बाय फायर, और लॉस ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, कोई एसेट हमने बेचा और वो बहुत कम में बिका. तो इस तरह के लॉस जो होते हैं ये भी लॉस हैं. ठीक है, लेकिन ये रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने दो कैटेगरीज में लॉस को डिवाइड कर दिया. एक जो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से होता है, एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू, और दूसरा ये वाला लॉस. पहले वाले को हम कहते हैं सिंपली लॉस, दूसरे वाले को हम कहते हैं कैपिटल लॉस. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. गेन, जैसे लॉस दो तरह का है ऐसे ही प्रॉफिट भी दो तरह का है. जो रेगुलर प्रॉफिट होता है बिजनेस का, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, उसे तो कहते हैं प्रॉफिट. लेकिन अगर कोई इररेगुलर नेचर का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑफ इररेगुलर नेचर अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इंसिडेंटल टू बिजनेस. फॉर एग्जांपल कोई एसेट हमने बेचा, सपोज एक मशीनरी हमने खरीदी थी 10 लाख रुपए की. ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपए हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगा दी फर्स्ट ईयर में, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 10 लाख की खरीदी थी, 1 लाख डेप्रिसिएशन लेस कर दी, तो अब कितनी वैल्यू रह गई? 9 लाख. राइट. ठीक है, अब सपोज उस मशीनरी को हमने किसी वजह से सेल कर दिया और वो बिक गई 9,10,000 में. हमारी बुक्स में तो उसकी वैल्यू 9 लाख थी, लेकिन वो बिक गई 9,10,000 में. तो ये 10,000 जो हो गया, दैट इज गेन, प्रॉफिट ऑफ इररेगुलर नेचर. ठीक है, इज दिस टर्म क्लियर? गेन. Okay, so next term is discount, very attractive term. सबको बड़ा अच्छा लगता है डिस्काउंट. What is discount? Any reduction in prices. प्राइस में जब कुछ रिडक्शन कर दी जाती है, प्राइस में प्राइस कम कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट. जो डिस्काउंट दे रहा है यानी सेलर, उसके लिए डिस्काउंट अलाउड कहते हैं और उसके लिए ये एक्सपेंस है. और जिसको डिस्काउंट मिल रहा है यानी परचेजर, कस्टमर, उसके लिए कहते हैं हम इसको डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड फॉर हिम इट इज अ गेन. ठीक है, सो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस बट डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन. डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. अगर बल्क में कोई चीज खरीदो और ज्यादा खरीदो तो कुछ परसेंटेज वो लेस कर देते हैं, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. और कई बार क्या होता है, उधार पे नहीं खरीद रहे, इमीडिएटली कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ये टर्म्स आगे जर्नल के चैप्टर में और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बैड डेट्स. बैड डेट्स मतलब जो डेटर बैड हो गए. डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसे लेने थे. अगर किसी डेटर से हम पैसा नहीं रिकवर कर पा रहे, सपोज उसने कहा था 2 महीने बाद पैसे दे देगा, नहीं दिए, हमने बार बार रिमाइंडर भेजे तब भी नहीं दिए. ठीक है, और अब कि हमें बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई है कि वो पैसे देगा, लीगल एक्शन भी अगर हमने लेने की कोशिश करी तो भी नहीं निकल पाए, इस अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेट्स. अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स. एंड
इट इज अ लॉस। ठीक है, उसको फिर हम उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं लॉस दिखा के। नेक्स्ट टर्म इज सॉल्वेंसी, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और फर्म टू पे डेट्स इन टाइम। हमने जिनके पैसे देने हैं अगर हम टाइमली दे पाते हैं तो हमारी फर्म कहलाएगी सॉल्वेंट। जिसने भी किसी के पैसे देने हैं अगर वो टाइम पे दे पाता है, सब पेमेंट्स कर पाता है अपनी, तो वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और नहीं कर पाता है तो वो कहलाएगा इनसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। सो इनसॉल्वेंसी इज बैंकरप्सी, the inability of a person or a firm to pay debts in time. Are these terms clear? Yes, sir. Are these terms clear? Yes, sir. Good. So that completes the accounting terms. ये chapter complete